So about the vegetative propagation. And this method of asexual reproduction, ये जो है asexual mode of reproduction होता है. And in this asexual mode of reproduction, only this method is found in plants. So making of new plant from parent plant, new plant from parent plant, new plant from parent plant, from either from leaf, stem or root, leaf, stem or root. This is known as vegetative propagation, and this can be categorized into two categories: natural. So natural, by in the case of natural, there are number of structures. इसमें आपका रूट से भी हो सकता है, नेचुरल में आप रूट से भी पढ़ सकते हैं. So रूट में नेचुरल प्रोपागेशन थ्रू रूट इज फाउंड इन स्वीट पोटैटो. ओके, स्वीट पोटैटो में जो है नेचुरल प्रोपागेशन होता है रूट से. उसके अलावा दलबतिया से शो हो जाएगा था. सेकेंड, स्टेम. So stem are modified in different way, like rhizomes, okay, or offset, then tuber, potato tuber, okay, and these are known as vegetative propagules. और उसके अलावा जो है लीव्स में या पड़े होंगे ब्रायोफाइलम. इन ब्रायोफाइलम द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक प्लेस थ्रू रूट, लीफ के बॉडी में प्लांटेट्स दिखाई देते हैं. देन द सेकंड कैटेगरी इज द आर्टिफिशियल. And artificial vegetative propagation, it involves the propagation or making of new plant from either stem, root or leaf with the involvement of human activity. Human involved होता है तभी ये propagation होता है, जिसको हम बोलेंगे artificial propagation. And artificial propagation can be divided into again into three categories. There are three types of artificial propagation. One is the cutting. So first artificial propagation, or first category is the cutting. And in cutting we can apply the process in all the parts. It means we can do cutting in stem, like in sugarcane. For example, sugarcane, rose, okay, sugarcane, rose, hibiscus, ये सभी जो है कटिंग से ग्रो किए जा सकते हैं, न्यू प्लांट बनाए जा सकते हैं. Second is root cutting. So root cutting can be done especially in the case of guava. For example, guava is a plant in which root cutting can take place to raise new plant. And then in leaves, the cutting in leaf also can done in some plant, like in bignonia. For example, bignonia leaf. Okay, the leaves of bignonia can be cut and put into the soil to raise the new plant. Then the second category of artificial propagation, it is the layering. And layering can be divided into two categories. It is mound layering, and the second is the air layering. And there is a condition to divide the layering into two categories. And the condition is the quality of stem. Stem की quality कैसी होती है? अगर flexible stem है, small size plant है और flexible stem. Air layering, sorry, mound layering जो है small plant with flexible stem. Okay, the condition for mound layering is the small plant
with flexible stem, while the condition for air layering it is the large plant with hard stem, or we can say that नॉन फ्लेक्सिबल स्टेम। ऐसे प्लांट जिनका स्टेम जो है नॉन फ्लेक्सिबल होता है, दे कैन नॉट बी बेंड, और व्हेन दे बिकम्स बेंड दे द पार्ट बिकम्स ब्रेक डाउन, बिकॉज लेयरिंग कैन बी डन in the branch of the plant or in the body of the plant while remain with the parent body। parent plant से attached form में ही ये layering process perform होता है, and this process involve the rooting in the stem region, and rooting take place at the place of a node। स्पेशली आपको बताया गया था that a condition for vegetative propagation or vegetative propagation is take place especially at node, okay, or node is the site for vegetative propagation because nodes consist of the meristematic tissue, okay, intercalary meristem, and this meristematic tissue has ability to divide, and after division they can be form various structure। When we have discussed about the intercalary meristem in our previous class in class 9 chapter tissue, on that place we have discussed that intercalary meristem are responsible to raise new branches from the nodes, new leaves, new buds, okay। It means the nodes are the place from where there may be arising the various part of the plant's body के अलग अलग पार्ट्स को रेस करने की, ग्रो करने की एबिलिटी पाई जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। कुछ प्लांट आप ऐसे भी देखा होंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम या नोड्स के पास से रूट निकले होते हैं, ओके। कुछ प्लांट में ऐसे होते हैं जो बारिश के समय में रूट निकलते हैं उससे, तो ये प्रॉपर्टी जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन को सपोर्ट करती है। एंड लेयरिंग में भी क्या होता है कि लेयरिंग प्रोसेस में, कटिंग में भी क्या होता है कि यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होगा उसी से कटिंग हम करेंगे, और यहाँ पे क्या होता है लेयरिंग प्रोसेस में स्पेशली हम स्टेम को सेलेक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। सो माउंट लेयरिंग में क्या होता है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे जैस्मिन इज अ गुड एग्जांपल फॉर परफॉर्मिंग द माउंट लेयरिंग प्रोसेस। माउंट लेयरिंग परफॉर्म करने के लिए जैस्मिन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसका प्लांट जो होता है वो छोटे हाइट का होता है, और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले, एक फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट के बेस से जो है लंबे लंबे स्टेम जो है नंबर ऑफ स्टेम्स निकले रहते हैं, एंड दीज स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल मीन्स दे कैन बेंड, और दे बेंड नेचुरली एंड टच द ग्राउंड, ओके। वो बेंड भी होते हैं और ग्राउंड को टच करते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन द केस ऑफ जैस्मिन, यू कैन फाइंड आउट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एज द स्टेम bear at the base of the plant bear a number of stems, okay, and these stems consist of leaf, and the flowering bud। So when these stems or when we need to do layering, अगर हम लेयरिंग जब करना चाहते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, so suppose this is the soil surface and we have to perform a small scratch at the place of node, okay, or between the two node। दो नोड के बीच में जो इंटर नोड कहलाता है उसको, ये आपका नोड है लाल से निकला हुआ है, तो ये दो नोड है और इसके बीच में क्या इंटर नोड है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, तो यहाँ पे जो नोड होगा, दो नोड के बीच में जो इंटर नोड होगा उसी इंटर नोड पे हम स्क्रैच करेंगे, उसके आउटर पार्ट को, स्किन को रिमूव करेंगे, और इस रिमूव करने के बाद उस पार्ट को, इंटरनोड पार्ट को हम क्या करेंगे, डीप करेंगे इनटू द सॉइल, ओके, एंड रिमेन डिस्टर्ब फॉर सम डेज, ओके। उसको क्या करेंगे कि कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब फॉर्म में, देन वी विल फाइंड आउट दैट द रूट ग्रो एट द प्लेस ऑफ नोड, ओके। वी पुट द सॉइल ओवर दिस पार्ट विथ नोड एंड इंटरनोड, नोड और रिमूव द इंटरनोड, दोनों को जो है एक साथ सॉइल में क्या करेंगे, कवर कर देंगे। सॉइल से कवर करने के बाद क्या ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे जो नोड्स है, नोड्स से रूट्स बियर करेंगे, ओके, नोड्स बियर रूट, एंड व्हेन दिस नोड्स बियर रूट
then we can cut that part from the parent plant. Okay, from the parent body they can be cut and transfer to another place to raise the new plant. ऐसे में क्या करेंगे कि यहाँ से पेरेंट प्लांट से स्टेम को क्या करेंगे, कट कर देंगे जब रूटिंग परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद उसको जो है वहाँ से अपरूट करने के बाद किसी अदर प्लेस पे या पॉट में आप लगा करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं जैस्मिन का। तो इस तरह से जैस्मिन जो है लेयरिंग, माउंट लेयरिंग परफॉर्म करके बहुत सारे प्लांट आप आसानी से बना सकते हैं कम समय में। अगला है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग के लिए जो कंडीशन है दैट इज लार्ज प्लांट, इट मीन्स द ट्री एंड हार्ड स्टेम। जैसे देखिए होता क्या है, अमरूद का पेड़ आप देखे होंगे, गुआवा या मैंगो का प्लांट, जैसे ही ऊपर से उसके स्टेम्स ब्रांचेस से कोई छोटा सा ब्रांच पकड़ कर नीचे की तरफ खींचते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्रांच बिकम्स ब्रेक। ब्रांच क्या होता है, टूट जाता है, वो जो है नीचे की तरफ झुकता नहीं है। तो कुछ दूर तक आप झुकाएंगे तो झुकेगा, बट उसके बाद क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, हार्ड होता है स्टेम। तो ऐसे केस में लेयरिंग उनमें भी परफॉर्म हो सकता है, बट एयर लेयरिंग मीन्स एबव द ग्राउंड, उसमें सॉइल की बिलो द सॉइल, जैसे यहाँ पे अंडर द ग्राउंड होता है लेयरिंग, तो उसको माउंट लेयरिंग बोलेंगे। एंड एबव द ग्राउंड जो लेयरिंग होगा उसको हम एयर लेयरिंग। मीन्स यहाँ पे आपका सपोज ये स्टेम है, ये सॉइल के अंदर इसका रूट गया है। अब स्टेम की सॉइल की एबव जो है कैसे हम एयर लेयरिंग करेंगे, सपोज ये आपका जो है एक ब्रांच निकला हुआ है स्टेम से, मेन स्टेम से। सो उस ब्रांच में आपका जो है ये लीफ निकली हुई है, इनसे ब्रांच क्या है, लीविंग है। ओके, दिस ब्रांच इज लाइव। तो ऐसे ब्रांच में हम लेयरिंग अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एट द प्लेस ऑफ और बिटवीन द टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स कैसे पहचानेंगे, तो स्टेम में ट्री के केस में हमको क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि नोड्स कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो नोड्स को आइडेंटिफाई करने का एक सबसे आसान तरीका है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ फ्रॉम द ब्रांच। तो ब्रांच में अटैचमेंट ऑफ लीफ का प्लेस क्या है, ये आपको दिख रहा है। सपोज यहाँ पे है और जो है उसके आगे यहाँ पे, तो नोड कहाँ होंगे, जहाँ पे लीफ निकलेगा वही नोड होगा। तो दो नोड के बीच का जो स्पेस होगा मतलब ये वाला, तो इसी प्लेस पे हम क्या करेंगे, बार को रिमूव करेंगे। ओके, आफ्टर रिमूविंग द बार बाय शार्प ब्लेड, सो आफ्टर रिमूविंग द बार वी नीड टू पुट द सॉइल और मॉइस्चरस सब्सटेंस ओवर देम। ओके, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम कोई मॉइस्चरस सब्सटेंस का लेयर बनाएंगे या सॉइल का लेयर भी बना सकते हैं। एंड देन इट इज covered by the plastic, okay, covered and bind with a thread, प्लास्टिक से उसको कवर कर देंगे टू रिटेन द मॉइस्चर ओवर दैट प्लेस। उस प्लेस पे जो है मॉइस्चर को रिटेन बनाए रखने के लिए उसको हम प्लास्टिक से कवर कर देंगे और उसके दोनों किनारे को क्या करेंगे, रस्सी से बांध देंगे। सो देन यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम डेज द रूटिंग टेक प्लेस इन ऑन दैट प्लेस आल्सो। तो ऐसे केस में भी क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नोड्स है, स्पेशली नोड्स को ले सकते हैं, तो ये नोड्स प्लेस पे आपको जो है रूटिंग दिखाई देगा। और जब यहाँ पे रूटिंग परफॉर्म हो जाएगा, सो ऐसे केस में यहाँ पे भी क्या करेंगे कि आप यहाँ से एक कट लगाएंगे एंड आफ्टर कटिंग दैट पार्ट दैट ब्रांच विथ रूट, ब्रांच दैट बियर रूट, दे कैन ट्रांसफर इनटू द सॉइल और इनटू द पॉट टू ग्रो न्यू प्लांट ऑफ सेम प्लांट। ओके, उस पेरेंट प्लांट से उसको कट करके अलग करके और पॉट में लगा सकते हैं या फिर सॉइल में लगा सकते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एयर लेयरिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। सो एयर लेयरिंग कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ फ्रूटिंग प्लांट्स लाइक गुआवा, मैंगो, ओके, लीची। ये सभी जो है उनका स्टेम हार्ड होता है, स्पेशली जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ही ऊपर होते हैं। तो ऐसे केस में उनमें माउंट लेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन बचता है दैट इज एयर लेयरिंग। सो एयर लेयरिंग कैन बी डन इन मैंगो, गुआवा, ओके, मैंगो, गुआवा, पोमेग्रेनेट, ये सभी में जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द आर्टिफिशियल propagation, the third method. It is the grafting. The third is the
grafting. And grafting involves the selection of two types of plant parts. Okay, plants. दो तरह के प्लांट को सिलेक्शन करना होता है ग्राफ्टिंग में. एक जो पार्ट होता है वो होता है stalk, and plus second is the scion. Okay, stalk is for rooting, for root, and scion for stem. Okay, दो पार्ट हम लेते हैं दो अलग अलग प्लांट के. एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें रूटिंग बहुत ही अच्छा होता है, तो ऐसे प्लांट के स्टेम को या तो कट करके लेते हैं या फिर उसके स्टेम को जो है एज यूजुअल वो जो है प्लांट ग्रो कर रहा है, अभी जर्मिनेट किया हुआ है, सॉइल में लगा हुआ है, पॉट में लगा हुआ है, और ऐसे प्लांट का जो पार्ट होता है उसको हम स्टॉक बोलेंगे. और उसके ऊपर जो लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉट है, सपोज यू हैव अ पॉट. ओके, एंड इन द पॉट you germinated, you have germinated a seed of mango. मैंगो का सीड आप जो है इसमें पहले से जर्मिनेट करके लगाएगा. तो ऐसे केस में मैंगो के सीड जब जर्मिनेट हो जाता है तो जर्मिनेशन के बाद उसमें रूट आ जाएगा, रूट गमले के अंदर रहेगा, और स्टेम पार्ट को हम क्या करेंगे यहाँ से कट कर लेंगे. इनसे आप ये कटेड पार्ट है, और उसके ऊपर ये एक ऐसा मैंगो है जो सीड से ग्रो कराएगा. अब दूसरा जो आप पार्ट लेंगे सियॉन, ये पार्ट कहलाएगा स्टॉक. दिस इज नोन एज स्टॉक. और उसके ऊपर एक हम जो है कोई ऐसे प्लांट का जो डिजायरेबल प्लांट हो, जिस प्लांट का आप नया प्लांट बनाना चाहते हैं, उसके प्लांट के स्टेम के ब्रांचेस से छोटा सा पार्ट आप कट करके लाएंगे, और यू विल कट मेक अ कट ऑब्लिकली. ओके, यू विल मेक द कट ऑब्लिकली. इसमें कट कैसा लगाना है? ऑब्लिक कट लगाना है, ऑब्लिक. सो ऑब्लिक कट करने के बाद इस दोनों को, ये पार्ट क्या है? सियॉन है. दिस इज द सियॉन पार्ट. अब ये सियॉन पार्ट जो ऑब्लिकली कट है, स्टॉक भी ऑब्लिकली कट है, उसी सेल में, तो ये एक दूसरे में क्या होंगे? फिट हो जाएंगे. और फिट करने के बाद इसको हम थ्रेड से क्या करेंगे? टाई कर देंगे. थ्रेड से उसको बांध देंगे जिसमें वह अनडिस्टर्ब फॉर्म में पड़ा रहेगा. और उसमें एक चीज ध्यान देना है कि दोनों का जो डायमीटर होना चाहिए, स्टॉक का भी और सियॉन का, दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए. जिससे क्या होगा? ये इंश्योर करेगा द प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू, दैट इज वैस्कुलर टिश्यू. जाइलम और फ्लोएम का जो प्लेसमेंट होगा वह दोनों का क्या होगा? सिमिलर रहेगा, अगर डायमीटर सेम रहेगा तो ये जरूरी क्यों होता है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर. तो देन यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन और रेजिंग ऑफ बर्ड्स, या जो है ऑब्जर्व करेंगे इस सियॉन पार्ट से जो है in upper part or phloem part you will observe the growth of small bird, and from these small birds the branches will be grow, और branches जो है ये फॉर्म होंगे, बनेंगे. और जब ये branches बनने शुरू हो जाएंगे, branches बढ़ेंगे, इसका मतलब ये कि आपका जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल रहा. एंड देन यू कैन ट्रांसफर दिस प्लांट फ्रॉम द पॉट इनटू द सॉइल टू रेज द न्यू ट्री. तो ऐसे में आप न्यू ट्री ग्रो करने की उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं. और ग्राफ्टिंग स्पेशली जो है फ्रूटिंग प्लांट में जो है मैंगो में किया जाता है. मैंगो में ग्राफ्टिंग की जा सकती है. ये जो है आपका लेमन में किया जा सकता है. ओके, उसके अलावा जो है ये फ्लावरिंग प्लांट में रोज इज द वन ऑफ द प्लांट विच स्पेशली इस समय जो है रोज, जितने भी रोज आप मार्केट में देखते हैं, न्यू कलर, न्यू वैरायटी के रोज, ये सभी ग्राफ्टिंग से ग्रो किए जाते हैं. ओके, तो ये था आपका ग्राफ्टिंग प्रोसेस. अब अगला जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का, दैट इज द माइक्रो प्रोपागेशन. माइक्रो प्रोपागेशन इज आल्सो वन ऑफ द आर्टिफिशियल प्रोपागेशन मेथड which is also known as tissue culture. Is also known as tissue culture, and this tissue culture involve the raising of new plant from either single cell taken from the meristematic region or apical region of the plant where apical meristem available, or the small tissue, okay, small size tissue or a organ of the plant. तो ऐसे में जब हम न्यू प्लांट इस
सेल से या टिश्यू से या छोटे ऑर्गन से बनाते हैं इन अ कल्चर मीडियम इन लैबोरेटरी, लैब में जो है इसको बनाते हैं प्लांट को। सो दैट प्रोसेस नोन एज टिश्यू कल्चर अंडर द गाइडेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन।